السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج پھر انشاءاللہ ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کا بھائی شاہد نوری حاضر آیا۔ ایک واقعہ حضور سرکار سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، ان کے صاحبزادے حضور مصطفیٰ رضا خان حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ انشاءاللہ آپ سنیں گے، آپ کا دل مچھڑے گا، آپ خوش ہوں گے، آپ کا دل باغ باغ ہوگا۔ تو انشاءاللہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ابھی چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور آپ تھوڑا سا ہمیں سپورٹ کریں۔ اب انشاءاللہ ویڈیو شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ پرانے شہر میں وہ بچی سرکار مفتی اعظم ہند سے پیار کرتی، اپنے والد سے کہنے لگی ابا مجھے ننے میاں کے پاس لے چلو۔ کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹی لے چلیں گے۔ اچانک میں طبیعت خراب ہو گئی بچی کہنے لگی بابا اب تو لے چلو۔ کہا بیٹی جب تو ٹھیک ہو جائے گی پھر لے جائے گی۔ باپ کو معلوم نہ تھا، مشیت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ باپ صحت کے انتظار میں بیٹھا رہا، لیکن کچھ دن کے بعد قدرت کا کرنا یہ کہ بچی کا انتقال ہوا۔ جب بچی کا انتقال ہوا نا، باپ رویا، اسے بیٹی کی باتیں یاد آئیں۔ رو کے کہنے لگا کاش میں اپنی بیٹی کو لے گیا ہوتا، بات مان لی ہوتی تو آج یہ ندامت کے آنسو نہ ہوتے میرے۔ وہ رو رہا تھا بیٹی کے جنازے کے پاس، لڑکی کے چچا نے آ کے بھائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا بھائی ذرا صبر سے کام لیں۔ کہنے لگا بیٹی کا انتقال ہوا ہے، وہ صبر سے کام لینے کی بات کر رہے ہیں، اور مجھ سے میری بیٹی کہتی چلی گئی کہ ننے میاں سے ملاقات کرا تو میں کرا نہ سکا۔ تو بھائی نے اتنا سنا نا لڑکی کے چچا نے، کہنے لگا پریشان کیوں ہوتے ہو، زندگی میں نہ صحیح کم سے کم مرنے کے بعد ہی ان کی قدموں تک پہنچا۔ اب کیا ہوگا، کم سے کم ان کی نظر پڑ جائے گی۔ اتنا باپ نے سنا، بیٹی کے لاش کو اپنی گود میں اٹھایا، پرانے شہر سے چلتا ہوا آیا سودا گران میں۔ سرکار مفتی اعظم ہند مصلی بچھا کر کے اللہ کی ذکر میں مصروف ہیں، ذکر میں مشغول سرکار مفتی اعظم ہند ہیں۔ آئے ہیں، آپ کا تخت پڑا تھا، بچی تقریباً 6 یا 7 سال کی اس وقت میں تھی۔ بچی کو لا کے باپ نے بستر پہ اس تخت پہ ڈالا جس پہ سرکار بیٹھ کر کے مفتی اعظم ہند حقہ پیا کرتے تھے۔ آپ مصلی پر اپنی عبادت میں مصروف تھے، ذکر میں مشغول تھے۔ بچی کو لٹایا، کپڑا ڈال دیا، اس کے بعد آ کر کے بچی کا باپ مفتی اعظم ہند کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آؤ دیکھو ان کے گھرانے کی شان کیا ہے، یہ کتنی شان و رفت والے ہیں، آج تک صحیح سے پہچاننے کی ہم نے کوشش نہیں کی ہے۔ بہت آسانی سے انگلی اٹھا دیا کرتے ہیں شہر بریلی کی طرف، اور نادان جانتا نہیں ہے جو وقار بریلی میں ہے نا، وہ صرف بریلی کا نہیں بلکہ بغداد والے غوث اعظم کا ہوتا ہے۔ تجھے جانا نہیں ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، وہ تاریخ اٹھا کر کے پڑھو کہ ایک دن سرکار مفتی اعظم ہند کے کمرے کے پیچھے سے ایک شخص کا گزر ہوا، روشن دان کھلا تھا، دیکھا بڑی تیز روشنی نکل رہی ہے۔ روشنی کی تیزی کو دیکھا، اس نے اچک کے دیکھا کہ کوئی بزرگ ہیں جو مفتی اعظم ہند کے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مفتی اعظم ہند زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فجر کے وقت کا انتظار کرنے لگا، جیسی فجر کا وقت ہوا آیا مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں، چلم بھر کے لایا، کہنے لگا حضور ایک بات پوچھوں؟ کہا کیا؟ کہ حضرت میں رات یہاں سے گزر رہا تھا، روشن دان سے روشنی نکل رہی تھی، میں نے دیکھا جھانک کر کے یہ روشنی کیسی ہے، حضرت کے چراغ کی تو روشنی بھی ایسی نہیں ہے، لیکن جب میں نے دیکھا حضرت مجھے تعجب ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا کوئی بزرگ اوپر بیٹھے تھے، آپ نیچے تھے، حضرت بتائیے تو صحیح وہ بزرگ کون تھے اور روشنی کیسی تھی؟ مفتی اعظم فرماتے ہیں جا اپنا کام کر۔ کہا نہیں حضرت جاؤں گا نہیں جب تک بتاؤ گے نہیں۔ تب مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا تو نے جن بزرگ کو دیکھا تھا نا تخت پہ بیٹھے ہوئے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ بغداد والے غوث اعظم بیٹھے ہوئے تھے، اور جو روشنی روشن دان سے نکل رہی تھی وہ ان کے چہرے کی روشنی تھی۔ ان کا معاملہ یہ مفتی اعظم کا غوث اعظم سے ہے۔ اللہ اکبر۔ بچی کو لٹایا باپ نے لا کر کے، جیسی آپ نے توجہ فرمائی، پیچھے باپ کی ہچکیوں کو سنا، آپ مصلی سے اٹھے، اٹھنے کے بعد فرماتے کیسے آنا ہوا؟ رو کے کہتا حضور میری بیٹی کو آپ سے بڑی محبت تھی، لیکن آپ سے ملاقات کے انتظار میں چلی گئی۔ رو کر کے اتنا کہا ہے، سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں بچی کہاں ہے؟ کہتا حضور وہ آپ کے تخت پہ لیٹی ہوئی
हुई है। आप फरमाते हैं फिर परेशान किस लिए हो? बाप कहता हुजूर मेरी बेटी का इंतकाल हुआ है, उसका जनाजा उठा करके लाया हूँ पुराने शहर से सौदा गिरान तक। अल्लाह अकबर का हजरत इस हसरत ने रुलाया है, अफसोस अपनी बेटी की फरमाइश पूरी ना कर सका, मैं आपसे मुलाकात ना करा सका। सरकार मुफ्ती आजम उठे हैं, उठने के बाद आए हैं, बच्ची के पैरों की तरफ खड़े हुए हैं और खड़े होने के बाद आपने बच्चे के पैर की तरफ से कपड़ा हटाया, पैर का अंगूठा पकड़ा, पकड़ के हिलाया और हिलाने के बाद फरमाते हैं ए बेटी तुम मुझसे मिलना चाहती थी, आंखें खोलो देखो सामने मुस्तफा रजा खड़ा है। इतना कहने की देर थी, खुदा की कसम इधर इशारा मुस्तफा रजा का था, उधर करम मदीने वाले मुस्तफा का हो गया था। ऐसा लग रहा था कि इशारा मुफ्ती आजम का हो, करम गौसे आजम का हो गया हो, ज़बान मुफ्ती आजम की हो, फैजान गौसे आजम का हो। ऐसा लग रहा था कि मर्जी इनकी हो, फैसले खुदा ने कर दिए। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह बेशक। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने हुजूर ताजो शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत सरजमीनी परेबा, मुसलमाने परेबा, अजरी कमेटी, नारे तकबीर। हाँ साहिब ये इनका घराना है, वो खुदा की कसम ये अपनी पे आ जाएं तो फिर हर बंदा ये कहेगा निगाह के वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की बेशक तकदीर है। वाह वाह, मेरे मुर्शिद गिरामी सरकार ताजु शरिया पे कुछ लोगों ने उंगली उठाई थी काजी उल कुज़ात फिल्म होने के बारे में, और उन्हें नजर ही नहीं आता वो काजी उल कुज़ात फिल्म कैसे हो सकते हैं। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे। हक है। हर जहनियत का आदमी है, उंगली उठाई का वो जब उन्हें नजर नहीं आता काजी उल कुज़ात कैसे बना दिया गया। एक बंदा मुरीद हुआ सरकार काजी शरिया का, मुरीद होके वो अपने शहर पहुंचा। पहुंचने के बाद कुछ लोग होते हैं ना चढ़ाने वाले, कहने लगे किसके मुरीद हुए हो? का बरेली में अजहरी मियाँ के मुरीद। का उनके मुरीद हुए हो? यार वो तो कभी किसी मुरीद से मिलते तक नहीं है। ऐसे आदमी का मुरीद होने से क्या फ़ायदा जिससे कभी मुसाफा ही ना हो सके ज़िंदगी में। और जब मुसाफा ही नहीं तो वो जब यहाँ नहीं पहचानेगा तो वहाँ कैसे पहचानेगा। ऐसे दिमाग भरा उस मुरीद का, वो बेचारा चक्कर में पड़ गया, शायद मैंने गलती कर ली। अब फिर का ऐसा पीर ढूंढ जिससे जब चाहे मुलाकात हो जाए। कहा ठीक है यार कह तो सही रहे हो। का पता कहाँ मुरीद हुआ था? कहा भीड़ बहुत थी, लाखों का मजमा था। कहा सुन 5 जाएं तो मुलाकात नहीं होती है, तो लाखों में कैसे पहचानेंगे तुझे? उसे टेंशन हो गई। उनने कहा कल ही नया पीर पकड़ना है। क्या सही रहा है, नया पीर पकड़ना है। सोया, इधर आंख लगी, ख्वाब में मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया तशरीफ है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान, बेशक। क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे हो ना इतनी भीड़ में मैंने तुम्हें मुरीद किया तो तुम्हारी पहचान नहीं होगी। फरमाते हैं कि अपनी छोड़ो, हम वो बता दें तेरे आगे कौन बैठा था। उस लाखों की भीड़ में तेरे पीछे कौन था ये भी मैं जानता हूँ। तेरे दानी जानिब कौन था ये भी मैं जानता हूँ। तेरी बाईं जानिब कौन था ये भी मैं जानता हूँ। तुझे ये कैसे महसूस हो गया कि मैं तुझे नहीं पहचानता हूँ? और रह गई बात करने की बात, तो फरमाते हैं आपकी ज़िंदगी की बात है। ख्वाब में फरमाते हैं कि अरशद मियाँ का नंबर ले ले, जब कभी दिल चाहे फ़ोन कर लिया करना, अख्तर रज़ा से बात हो जाया करेगी। ये कहा, इतने में दरवाज़ा बज गया। दरवाज़ा जब बजा, मुरीद ने देखा तो एक और मुरीद थे हजरत के, कोई थे इंजीनियर साहब, वो खड़े दरवाजे पे। कहा सुना था जो शरिया के मुरीद हो गए? कहा हाँ। कहा लो अरशद मियाँ के नंबर की ज़रूरत हो तो नंबर में लेके आ गया हूँ। तवज्जो है? जो लोग ये कहते थे ना कि इनको क्या दिखता है, और यार वो हज़ारों किलोमीटर की मसाफत देख लेता है। मुरीद के दिल पे क्या गुजर रही है ये बरेली वाला देख रहा है, और तू अभी यहीं रह गया कि नजर नहीं आता। कहा ये अरशद मियाँ का नंबर है, बात करनी हो इस पे कर लेना, हजरत से बात हो जाएगी। नंबर नहीं लिया, सीधे उठे, बरेली का सफ़र शुरू किया। आए अपने मुर्शिद की बारगाह में।
सलाम पेश किया, मुसाफा हुआ और मुसाफा करके कहने लगे हजरत जब सब कुछ आपने बता दिया था तो नंबर भी आप दे देते। सरकार ताजुल शरिया ने फरमाया कि जल्दी मुझे नहीं जल्दी तुझे थी, तेरे दरवाजे पे इंजीनियर जो आके खड़ा हो गया था। तो ये उन्हें पहचानेंगे? खुदा की कसम जिनके इशारों में तकदीरें बदल जाती हैं। वाह वाह वाह। हमने सिर्फ पीर नहीं खोया है, हमने अपने वक्त का कुतुब भी खो दिया है। जिंदाबाद। अपने वक्त के कुतुब हैं सरकार ताजुल शरिया। मेहरबानी करें, बुजुर्गों के बारे में जबान न खोलें, अल्लाह वालों से मोहब्बतें पैदा करें, दिल में नफरतें नहीं। और मैंने बीच में जो गुफ्तगू की थी उस गुफ्तगू को भी, इस्लाही बातों को भी जहन नशीन कर लें। हमें अपने आगे का उठा के ज़रूरतमंद को खिलाना है, एक बात। दूसरी बात, बच्चों को हलाल कमा के खिलाना है। ये कही थी मैंने आपसे, याद है ना? कैसा खिलाएंगे? इंशाअल्लाह हलाल खिलाना है। और घर जाके माँ बहनों से कहना कि अपने शौक थोड़े कम कर लो, वरना बंदा जो इधर उधर से हाथ मारता है ना, ये बीवी के दबाव में ही आके मारता है। जब वो कहती है ना मुझे सूट 5,000 का ही चाहिए, चाहे कहीं से भी ला, तो फिर बंदा हलाल हराम नहीं देखता, फिर कहीं से भी मिले सूट आना है। मेहरबानी करें, आप भी कनीज़ फातिमा हैं, आप भी मुस्तफ़ा जान रहमत के शहजादी की तर की कनीज़ हैं। शोहर घर से बाहर निकला करे, जब छोड़ने दरवाजे तक आया करो तो सलाम करने से पहले कह दिया करो मेरे सरताज जा तो रहे हो, हलाल का लुकमा मिले तो लेके आना, हराम का मिले तो खाली हाथ आ जाना। हम बच्चों को फाके से सुलाना गवारा करेंगे, बच्चों को जहन्नम में डालना गवारा नहीं करेंगे, बेशक। तेरा ये फर्ज बनता है, अपने शोहर को ये कह के भेज कि हलाल की रोजी लेके आना। इंशाअल्लाह फिर देखना नस्लें कैसी परवान चढ़ेंगी। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, अभी विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। अगर आज भी तू सच्ची कनीज़ फातिमा बन, फिर तेरी गोद में गुलाम हुसैन पैदा हो जाएगा। जिंदाबाद। लेकिन ज़रूरी है कि हम अपना किरदार बदलें। और साहिब, किसी की आंखों में धूल झोंक के सौदा नहीं बेचना है। हम गुलाम मुस्तफ़ा हैं, मुस्तफ़ा के गुलामों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। और कहीं दावत हो एक आदमी की तो एक ही जाना है। अगर समझ लो कि तंग दस्त है, गरीब है, बेटी वाला है, आधी रोटी घर खा के चला जा, उसका दिल रखने के लिए आधी रोटी खा ले। ये उसूल अपनी ज़िंदगी में बांध लेना, और फिर देखना अल्लाह कितनी बहारें अता फरमाएगा। और फिर मुस्तफ़ा का इश्क दिल में जब मौजन होगा ना, तो तब पता चलेगा कि इस नारे में मिठास कितनी है। आज नारे रिसालत लगा देते हैं, लेकिन मिठास का एहसास नहीं। मिठास का एहसास इसी दिन होगा जिस दिन ज़बान नारे रिसालत कहती हो और किरदार अदाए मुस्तफ़ा दिखा रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आएगा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह करीम सबसे पहले मेरी गुफ्तगू पे मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको सय्यदी सरकार ताजुल शरिया के फैज़ान से माला माल फरमाए। मौला करीम हम सबको मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत पर ज़िंदगी अता फरमा, और इसी मसलक पे हम सबको मौत नसीब फरमा, और क़यामत के दिन हम सबको सरकार आला हज़रत के झंडे के साए तले जगह इनायत फरमा। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने मुर्शिद की रूह को इसाले सवाब के नज़रिए से पढ़िए, ईमानदारी से जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। तो आपने देखा मुफ्ती हम्माद साहब ने बहुत प्यारी इस्लाही तकरीर की थी, जिसको सुनकर दिल खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके आप हमको ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और
ایک لائک کریں, تھوڑا سا ہمیں پیار دیں, سپورٹ دیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.